दिखा देता है लगे होता है। हो गया रिकॉर्डिंग दे दिया, आवाज हम हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। So today I am going to discuss calculations involving unit cell dimension. मैंने कल शुरू किया था लेकिन थोड़े समय के बाद टाइम आउट हो गया था। Calculations involving unit cell dimension, that is the calculation of density of the unit cell. In other words, you can say that I am going to derive the expression which gives the relationship between edge length and density. Edge length and density. Calculations involving unit cell dimension. हेलो सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर क्लोज पैकेजिंग नहीं पढ़ाया गया है। आवाज साफ है, सुनाई पड़ रहा है? बोलो। सर क्लोज पैकेजिंग नहीं पढ़ाया गया है। क्या? सर क्लोज पैकेजिंग नहीं पढ़ाया गया है। वो तो कहा गया तुम लोग की पढ़ा दिया गया सब। अच्छा ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट आफ्टर दिस टर्म्स आई विल डिस्कस, ओके। इसके बाद हम क्लोज पैकेजिंग पढ़ा देंगे, ठीक है? ध्यान दो। Calculations involving unit cell dimensions, that is the calculation of density of the unit cell, that is calculation of density of the unit cells. Dear friends, generally edge length of the unit cell is given in picometer, but you have to find the density of the unit cell in gram per centimeter cube. एक प्रॉब्लम क्या होगा, एज लेंथ दिया रहेगा पिकोमीटर में, बट आपको डेंसिटी फाइंड करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेट the edge length, let the edge length of unit cell is equal to a picometer, that is a into 10 to the power minus 12 meter, since 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter, or we can write here a into 10 to the power minus 10 centimeter. Am I right? No problem. So volume of unit cell is equal to a into 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल थ्राइस, that is a cube into 10 power minus 30 centimeter cube. Can we write or not? Yes हम लिख sir. सकते हैं? यस सर। Okay. Yes sir. This is the volume of the unit cell, but you can know that density of the unit cell का फॉर्मूला है mass of the unit cell divided by volume of the unit cell. Formula of density of unit cell is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. How can we find the volume of unit cell? ये तो निकल गया मेरा, but we have to find the mass of unit cell. कैसे निकालेंगे?
फॉर्मूला होता है सर कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट सर के बाद क्या लिखा है? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी and this expression gives the relationship between एज लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल के बीच का ये बताएगा रिलेशनशिप। हमको फाइंड करना है मास ऑफ द यूनिट सेल। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम्स इन unit cell, number of atoms in unit cell multiply by mass of each atom. Now the number of atoms in unit cell is Z into mass of each atom का फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो Z into atomic mass m divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23। ये वैल्यू हुआ मास ऑफ द यूनिट सेल का। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ये हो गया आपका Z into m Avogadro number multiply by हॉल ऑफ यूनिट से ये टर्म 18 into 10 के पावर 30 सेंटीमीटर क्यूब। This is the formula for the calculation of density of the unit cell, and here the unit of the density will be gram per centimeter cube। इसमें लिखा जाएगा। So with the help of this formula, that is called equation number 2, we are able to calculate the density of the unit cell. Clear? Any problem? Yes, sir. इस पर एक दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, घर बना लीजिएगा, मैं दे रहा हूं इसको नोट कर, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट कीजिए इसको। सर हाँ बोलिए। नंबर ऑफ एटम्स में जो यूनिट सेल में जितना एटम रहता है वो लिखना होगा। हाँ, Z में उसी में इसको जस्ट डिनोट किया और मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाई करना है। इसमें ये बताता है इसके मास को, उसमें कितने एटम्स हैं और एटम्स का मास कितना है, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ये दे देगा मास ऑफ द यूनिट सेल का। इसी के वैल्यू आप नोट किए हैं। और मास ऑफ ईच एटम का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू पुट करके इसको निकाला है। Now I am going to give two questions. सर लाइन इन सर नीचे में क्या लिखे? डेंसिटी इज इक्वल टू Z into capital M divided by 6.022 10 to the power 23 into 18 into 10 to the power 30 centimeter। ये वैल्यू पुट कर दिया यहां से, ये वाला।
राइट? इरेज करें इसको। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. देखो जो क्वेश्चन दे रहे हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, a face centered cubic element having atomic mass 60 and cell Sir, age 400 picometer, find the density of the unit cell. क्वेश्चन है a face centered cubic element, a face centered cubic element having atomic mass 60 and सर ऊपर वाला बोर्ड नजर नहीं आता है। नहीं आ रहा है। वो ठीक है, सर मैं बता रहा हूं। 13 चला गया है। नोट करो, a face centered cubic element, a face centered cubic element a face centered cubic element having atomic mass 60, having atomic mass 60 and edge length 400 picometer. Calculate the density of unit cell in gram per centimeter cube. सॉल्व हो जाएगा? यस सर, इजी है। Yes, sir, हो जाएगा, इजी है। अच्छा, what is the Z for this question? सर 4 होगा, Z4। Four. Four. Sir. For face centered cubic element के लिए होता है, face centered के लिए Z equal to 4, for BCC Z equal to 2. ओके, दिमाग रखना है इसको, ये बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो लोग करो। An element has got BCC structure and element question has is- BCC structure BCC stands for Sir, body center cubic unit. okay. An element has BCC structure with cell age 288 picometer and density is 7.2 gram per centimeter cube दिया हुआ है। An element had BCC structure with cell age 288 picometer and density is 7.2 gram per centimeter cube,
how many atoms are present in how many atoms are present in 208 gram of the element. How many atoms are present in 208 gram of the element? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा, इजी है। ओके ओके, ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के दिए हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। राइट, अब बोलो आगे क्या पढ़ाना है? डिफेक्ट शुरू करूं? सर प्लीज थोड़ा साइड होइए। डिफेक्ट्स सर पैक सर क्लोज पैकेजिंग। क्लोज पैकिंग में क्या छूटा है बता हमको। सर मैम क्लोज पैकिंग टॉपिक नहीं पढ़ाई है। नहीं पढ़ाई है? अच्छा ठीक है, पढ़ा लेते हैं बेटा इसको। यस सर। यस सर। हटा दीजिए। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है वो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0., मैंने कुछ ज्यादा निकालना है। ठीक है बेटा, देखो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लोज पैकिंग को मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप देखिए क्लोज पैकिंग को। Close packing in 1 dimension, in 2 dimension and 3 dimension। देखो इसको बता रहा हूं। पहले जान लो, इसमें एक टर्म बताने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो काम आएगा आपको। What is coordination number? Sir, the number of a atom attached with how many different atoms is called its coordination Sir. number. हाँ बताओ। Sir, atom or molecule which is surrounded given atom molecule is called coordination number. राइट। एक एटम, एक स्फीयर अपने सराउंडिंग में जितने स्फीयर से जुड़ा रहता है, टच करता है, टचिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक स्फीयर अपने सराउंड्स में जितने स्फीयर को टच कर रहा है वो बताता है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। इन 1 डायमेंशन में देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका? 2। सर यस, इसका 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को है। इन 2 डायमेंशंस में देखो in 2 dimensions there are 2 structures are formed. One is called a square closed packing and second is called hexagonal closed packing. In 2 dimensions there are 2 packing has formed. First is called a square closed packing and second is called hexagonal closed packing. 2 डायमेंशन में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड बनेगा
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बता रहा हूं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। In square close packing, one sphere is kept just below this sphere. एक स्फीयर ठीक इसके नीचे आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इसके नीचे आएगा। फिर अगर इस पैटर्न का नाम है, अगर इसका नाम है ए, तो इस पैटर्न का नाम होगा ए पैटर्न। अब इसी एक स्तर को देख लो आप यहाँ, मान लो लेट हम इसकी बात करते हैं, तो ये टच यहाँ किया, यहाँ किया, फिर यहाँ किया और फिर इसको किया। यहाँ ही बनाना होगा। देखो कितना पोजीशन होगा इसमें 4 होगा सर। स्टार बन गया है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड? सर 4। 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखिए हर एक दूसरे के नीचे रखते चले गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ठीक नीचे आते चला गया है। ये बना लास्ट स्क्वायर बना लिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 हो गया। एंड द स्पेस जो है वैकेंट हियर, इसका नाम क्या था बताया था मैंने? वॉइड्स void, और होल्स और इंटरस्टिशियल साइट्स, व्हाट में भी कुछ भी कह सकते हो आप। इसका नाम होगा आपका वॉइड्स और होल्स और interstitial sites। Now second is hexagonal close packing। बेटा इसको देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम ऐसे। सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें देखिए सेकेंड लेयर जस्ट इसका डिप्रेशन बनेगा यहां। थर्ड लेयर पे यहां शुरू करेंगे इसको हम। फोर्थ लेयर 90% में आ गया।
देखो आप किसी एक को आप टच करके देख सकते हो यहाँ कितना हुआ 100। अगर एक पैटर्न ए हुआ देन बी ए देन बी, इसका नाम हुआ ए बी ए बी ए बी ए डॉट डॉट पैटर्न का नाम हुआ है और हेक्सागोनल के लिए। अब किसी एक को टच करो यहाँ से, तो अगर इसकी बात करें कितने को टच करता है ये 2 3 देख लो 4 5 6। एक हेक्सागोन बन गया आपका। यहां होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ए बन गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ध्यान रखना है। तो 2 डायमेंशंस में 2 स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें बहुत कम वैकेंट स्पेस बचते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड इस पैटर्न का नाम हुआ ए बी पैटर्न हुआ है। इसमें 2 वर्ड्स बने हैं, ध्यान दो। एक वर्ड यहाँ है, दूसरा वर्ड यहाँ। एक बनेगा इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल और जो यहाँ बनेगा उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। जो कल मैंने डिस्कस किया था वर्ड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, यही बनता है इसमें। क्लियर? एंड डिस्टेंस क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये केवल आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक लेयर दूसरे पर, दूसरे के ऊपर एक और लेयर रखना है, बिकॉज everything that you see, that is our blackboard, your copy, your book, that is found in 2 dimension, and it is very difficult to draw a 3-dimensional diagram on this 2-dimensional blackboard or copy. It's very difficult work. So आप इमेजिन कर लो, इसमें 3D में 3 लेयर बनते हैं, ABC लेयर बनेगा, बट यहाँ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट वर्क होगा, राइट? इसको आप इमेजिन कर लेंगे 3 डायमेंशन में, आपको तो पैटर्न होगा ABC पैटर्न बन जाएगा। यही है इसका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? क्या तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3 डायमेंशन में? सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाँ यस सर। इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर यहाँ होगा 12। वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा 3 डायमेंशन में, ध्यान देना। जो ड्रा करना बहुत डिफिकल्ट काम होगा यहाँ पर, इसलिए 3D में आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, राइट? पैकिंग इफिशिएंसी मैडम पढ़ा दी है ना? यस सर। ओके, यस सर मैम पढ़ा दी है। ठीक है, तो मैं डिफेक्ट शुरू करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीपल। उसको देखो, मैं शुरू कर रहा हूं। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन दोनों एक ही नाम है। डिफेक्ट्स और imperfection. What do you mean by the term defects or imperfections? क्या होता है defects और imperfections? वो देख लीजिए। सर डिफेक्ट्स का मतलब हो गया कि, हाँ बताओ। सर डिफेक्ट्स का मतलब हो गया कि जो भी यूनिट सेल है उसमें कुछ मतलब अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस आ गए हों। राइट राइट, वेरी गुड। So defects or imperfections in crystals, ये क्या है जान लो। Before going to this topic,
I like to discuss what is ideal crystal. पहले डिफेक्ट जानने से पहले जान लो कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। व्हाट इज आइडियल क्रिस्टल तो समझ में आएगा कि डिफेक्ट्स क्या है। डिस्टेंस a crystal is said to be ideal if the entropy of its constituent at absolute zero temperature is zero, then the crystal is said to be ideal. मतलब करने का है कि किसी भी क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल तभी कह सकते हैं जब एब्सोल्यूट लोअर टेम्परेचर पर उसका एंट्रोपी जीरो हो। यहां टर्म आ गया एंट्रोपी, क्लास 11 में पढ़ चुके हो। व्हाट इज एंट्रोपी? Sir, degree of randomness. Randomness or zigzagness of a system is called entropy. So समझ लो, if the entropy of the constituent at absolute zero is zero, then the crystal is said to be ideal. अगर इसका entropy जीरो हो जाए at absolute zero temperature, तो कहेंगे उसको हम लोग आइडियल क्रिस्टल। एंड इफ एनी disorder or dislocation is observed in the arrangement of the crystal, it means the crystal is suffer from the defects. अगर उसके अरेंजमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन का या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कहीं कोई डिसऑर्डरनेस आ जाए, डिसलोकेशन हो जाए, इट मींस आपका क्रिस्टल जो है वो सफर कर रहा है किससे? डिफेक्ट्स। Defects. There are two types of defects. First, electronic defects, and second is called point defects. Electronic and second is point defects. Electronic defects and point defects. पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान देना। इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट। इन योर सिलेबस वी विल डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट्स। ये आपको सर से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, पर जान लो आइडिया बता देते हैं। इफ डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू dislocation of electron in the crystal, then it is called electronic defects. अगर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के डिसलोकेशन से मूवमेंट से अगर डिफेक्ट अराइज होता है, then it is called electronic defect. And if the defect arises due to movement of constituent particles, either atom, molecules, and whatever it may be, then it is called point defect or एटॉमिक डिफेक्ट। हमें सिलेबस में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो देखिए। सर एक बार आइडियल क्रिस्टल का डेफिनेशन फिर से बता दीजिए तो। लिखो भाई, ए क्रिस्टल इज सेड टू बी आइडियल, ए क्रिस्टल इज सेड टू बी आइडियल if entropy of its constituent, a crystal is said to be ideal if entropy of its constituent at absolute zero temperature is zero. At absolute temperature is zero, it is called ideal crystal. अब देखो हम बता रहे हैं आपको
Point defects. उल्टा Point defects. आपको जस्ट मैंने बता दिया, आप just told you if the defects arise due to movement of constituent particles like atoms, molecules or ions, then it is called point defect or atomic defects. Dear friends, there are three types of point defects. तीन टाइप का होता है. फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्री, stoichiometric defects. सेकंड है non stoichiometric defect, and third is called impurity defect. नाम सुनो इसका. Third is called impurity defect. There are three types of point defects. First है आपका stoichiometric defects, second है non stoichiometric defects, and last है impurity defects. Now I am going to discuss all these type of defects one by one. पहले देखो आप stoichiometric defect क्या होता है. First, stoichiometric defects. That means stoichiometric defect means you can say that the defects are point defects in nature and do not disturb the stoichiometry of the solid. इस डिफेक्ट में सॉलिड के स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है. There is no change in stoichiometry of there is no change in the stoichiometry of solid. मतलब सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आएगा. जो भी उसके रहेगा फॉर्मूला में रेशियो, दैट इज कह सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो as predicted in their formula. वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं जो उसके फॉर्मूला में प्रेडिक्टेड होते हैं. I mean you can say that there is no change in stoichiometry of the solid. उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आएगा. That's why it is known as stoichiometric defects. ये चार तरह के होते हैं. There are four types of stoichiometric defect. इसका टाइप जान लो.